Welcome students. Today we study last topic of chapter 1 class 10, revisiting rational numbers. Revisiting rational numbers and their decimal expansion and their decimal expansion. So we have studied rational numbers in class 9th. That's why the topic is revisiting rational numbers, and we also studied expansion of irrational numbers. So revising this, rational numbers अगर हमारे पास है, rational numbers can be of the two form, terminating or non-terminating and repeating. What does it mean? It means when 10 is divided by 3, we are getting 10 is divided by when 7 is divided by 5, what we are getting? We are getting 1.4. When 9 is divided by 2, what we are getting? We are getting 4 by 5. But when 10 is divided by 3, what we are getting? 3.3. So we have got a number of examples. This can be written as how? This can be written as bar. You have studied this thing in class 9th. Now we have related to this, we are going to study one important result. Okay, so what we have studied so far? Rational number कैसे होते हैं? Terminating decimal expansion and non-terminating repeating decimal expansion. And these are some examples. You can write yourself some example. And this is this. Now here, what we actually going to study? We are going to study. We have to explore. Exactly what when decimal expansion of p by q. What p by q is? Irrational number. Rational number. Where q is not equal to 0 is terminating. हमको ये पढ़ना है यहाँ बताइए. That's why I am writing. Otherwise writing से मैं बचना चाहता हूँ, मैं लिखना ही नहीं चाहता. Terminating and when exactly it is non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating repeating decimal expansion. Write yourself. क्या पढ़ना है हमको? हमको पढ़ना है, ये तो हमको पता है ऐसे होता है. ऐसा कब होता है? When we will get such type of rational numbers मतलब p by q. जो p by q है रैशनल नंबर है, ये ऐसा जब कब होता है? ऐसा रैशनल नंबर कब होता है कि वो टर्मिनेट कर जाए, और कब वो नॉन टर्मिनेटिंग है. मतलब कब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये, और कब वो टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, और तो ये एग्जैक्टली कब होगा? नाउ वी विल एक्सप्लोर दिस. तो वो क्या लिखा है? वी हैव टू एक्सप्लोर एग्जैक्टली, हमको ये ढूंढना है व्हेन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू. जो पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, इज टर्मिनेटिंग, व्हेन इट इज टर्मिनेटिंग and when it is not terminating. Okay, now we are proceeding with the, again I told you I am taking class for each and every students across. मैं तो नहीं बोलूंगा, इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ हर जगह, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको कोई टीचर नहीं मिल रहा है, अच्छे बच्चे तो एक ही बार में समझ जाते हैं. बट आई वांट टू provide my education to each and every student.
So if you are knowing this, please follow the policy of forwarding. You can see my video while forwarding the वीडियो. ओके, डोंट स्किप. हो सकता है आपको भी कुछ ना आता हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है. सो यू मे डोंट नो एनीथिंग, सो यू कैन गेट फ्रॉम माय वीडियो. आई एम गिविंग यू वीडियो फ्रॉम डीप. जितना डीप जा सकता हूं उतना डीप जा रहा हूं. नाउ लेट अस सी. ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल. हमारे पास ये लिखा हुआ है. अच्छा, इफ वी रिप्लेस इट्स डेसिमल वी विल गेट दिस. नाउ कट क्या आएगा? इसको अगर मैं 5 से काटता हूं तो 35/200. नाउ 7 by how much? 7 by how much? 7 by 40. Okay. Second example is this is written. So we can write like this. अगर मैं इसको 5 से काटता हूं, क्या आ गया मेरे पास? 6/20. Okay. Let us have one more example. If we have got 304, so क्या हो जाएगा? 304/1000. You can take n number of example. 152/200. Again what? 76. Not 76. मैं आधा कर दिया. मैंने इसको भी आधा कर दिया क्या? नो, हाँ आधा कर दिया. सॉरी, आधा कर दिया. ओके, 952/200. 5 से डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर. सॉरी फॉर दैट. तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. दैट इज दिस. अगेन वी कैन हाफ इट. 76 and 250. अगेन वी कैन कट इट. 38/125. Okay, so one more example. 4.125. Now this time we can cut with 5. So it is 200 and what over here? 825. Now again we cut from, then it is 40 and it is 165. After that again 8 and 33. So what I want to tell you is, see this pattern. There is something common in this pattern. You see, if there is p/q, हमारे पास कोई रैशनल नंबर है और मैंने इसको, देखो बेटा, ऐसा नहीं कि मैं इसको डायरेक्ट नहीं काट सकता था. मैं इसको सीधे 25 से काट देता, वो तो मैं आपको बताता भी रहा हूं. लेकिन मैंने इसको क्यों पहले 5 से काटा, इसको पहले 5 से काटा है ना. हाँ, इसको मैं 3/10 मैं इसको ऐसे काट सकता हूं. तो मैंने क्यों इसको डायरेक्ट, क्यों एक बार स्टेप में काट रहा हूं? सो बिकॉज आई वांट टू लेट यू नो समथिंग. तो हमारे पास कोई रैशनल नंबर था, उसको हम लेके गए हैं कहां तक? आखिरी तक लेके गए हैं. सच दैट कि जो नंबर मिल गया है यहां तक p/q फॉर्म में लेके गए हैं. आखिरी में p/q फॉर्म में लेके आए हैं. यहां से लेके चले हैं, यहां से लेके आए हैं. किस फॉर्म में लेके आए हैं? वेयर p/q आर को प्राइम. हमने इनको क्या कर दिया है? लास्ट तक को प्राइम में कन्वर्ट कर दिया है. बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है हमने इनको लास्ट तक. जब इनको सिंप्लीफाई कर दिया है तो एक चीज यहाँ पे देखने में आ रही है हमारे पास. क्या आ रही है? अगर मैं ये देखो, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है. वी कैन नॉट कट देम फर्दर. बट एक चीज क्या आ रही है? एक चीज देखो क्या आ रही है. जो डिनोमिनेटर है इन ऑल द केसेस, चाहे वो 40 हो, जो डिनोमिनेटर है चाहे 40 है, चाहे 10 है, चाहे 125 है या 8 है,
ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर या तो 2 से कट रहे हैं या 5 से कट रहे हैं या फिर दोनों से कट रहे हैं या फिर दोनों से कट रहे हैं। देखो ये चीज इसमें ये चीज है, देखो जो डिनोमिनेटर हैं या तो 2 से कट रहे हैं या तो 5 से कट रहे हैं या दोनों से कट रहे हैं। ये रैशनल नंबर थे, टर्मिनेटिंग थे, दीज आर द डेसिमल एक्सपेंशन पीवाई की फॉर्म थी। इसको जब हम अगर डेसिमल में करते तो ऐसे लागे करते, अगर इस रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते तो ऐसे करते, इस नंबर को करते तो ऐसे करते, इस नंबर को करते तो ऐसे करते, इस नंबर को करते तो ऐसे करते। दो ऐसे करते तो जो हमारा क्यू है, क्यू है क्या है, क्यू या तो 2 का मल्टीपल है, देख करके देख लेते हैं। लेट अस राइट 2 कैन बी रिटन एज 40 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। So we arrive very good result here. We result P और Q को प्राइम यहाँ लिख लेते हैं, जो P एंड Q आर या HCF इनका 1 होना चाहिए, को प्राइम है। तो P और Q क्या है, जो P अगर इस फॉर्म का है 2m और n फॉर्म का है, 2m 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का है, 5 की पावर n फॉर्म का है, mn फॉर्म का, मतलब या तो Q जो है तो क्या होगा, इट टर्मिनेट्स। अगर PQ है, इफ PQ इस फॉर्म, मतलब इसका रिजल्ट यहां पे लिख रहे हैं, रिजल्ट यहां लिख रहे हैं, इफ डिनोमिनेटर मतलब Q, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, देन रैशनल नंबर P by Q terminates, exactly terminate exactly। ये थ्योरम है हमारे पास, ये चीज है, एग्जैक्टली टर्मिनेट करेगा। अगर नहीं दिखाई पड़ा तो मैं दोबारा पढ़ देता हूं। इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, देन रैशनल नंबर P by Q, जो P by Q है, डेफिनेटली टर्मिनेट्स एग्जैक्टली। अब बोलोगे सर इसमें तो 2 है ही नहीं, 2 क्यों नहीं है? नहीं है तो 2 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो 38 2 की पावर 0 5 की पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 0, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पावर है मतलब 0 तो कुछ भी लिख सकते हैं, 0 को तो हम लोग 5 की पावर 0 इज 1। सो वी कंक्लूड हेयर कि if P has got only multiple of 2 and 5, either 2 or 5 or both, then we are able to terminate the rational number, otherwise we will get non terminating otherwise। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो हमको क्या मिलता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो प्लीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट द कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो m और n है वो क्या है, वो है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम यहाँ भी लिख लेंगे m and n आर पॉजिटिव, m and n आर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस एज अ थ्योरम। सो थ्योरम है आपकी क्या है, थ्योरम 1.5 क्या है थ्योरम, let x
be a rational number with rational number with its decimal expansion terminates, जो क्या करती है, terminates, then x can be expressed PQ where P and Q are co-prime. ये थ्योरम है आपकी, you can read it in book. Co-prime and Q has 2n or 5m as the prime factorization, as prime factorization, where n and m are non-negative integer, non-negative integer. So I think you understand the concept. अगर कोई x नंबर है तो हम उसको p by q में लिख सकते हैं. और q को कैसे लिखा जा सकता है? q को लिखा जा सकता है 2 की पावर n और 5 की पावर m. ऐसा तो नहीं, मैंने पिछले जब लिखा था तो मैंने 5 n m तो कुछ भी हो सकता है, पावर m n, ठीक है, हो सकता है मैंने लास्ट वीडियो में 2m लिख दिया हो और 5n लिख दिया हो. सो और जो n और m है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, तो इसका उल्टा भी सही है. अगर कोई नंबर ऐसे दे रखा है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे हमें क्या दे रखा था. लेट अस टेक वन एग्जांपल. 4/5 दे रखा है, एक नंबर दे रखा है इन द फॉर्म दिस. सो ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये हमको फॉर्म में दे रखा है 2 की पावर m और 5 की पावर n, या nm कर लें, ठीक, कोई बात नहीं, nm कर लेते हैं. ओके, सो when we multiply with 2 we will getting here 8 and here 10, so we can write it 8. कुछ भी कर सकते हैं हम लोग. ओके, अगर यहाँ पे कोई हमको फ्रैक्शन कुछ भी दे रखा हो, अगर p by q में दे रखा है और उसमें अगर ये q 2 और 5 की फॉर्म में है, तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में निकाल सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस डायरेक्टली प्रोसीड for exercise. Okay, so our first question is given like this, जिसमें दे रखा है फर्स्ट का ए पार्ट हमको दे रखा है 31 125. क्या क्वेश्चन दे रखा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द नॉन फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. हमको दिखाना है ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है. तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करता हूँ डायरेक्टली, यू विल हैव फैक्टराइजेशन में इसको करके दिखा देता हूँ आपको. अगर ये लिखा है तो हमें पता है ये तो डायरेक्ट 125 से भी जा रहा है. आप डायरेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, अदरवाइज 5 से करो. मैं डायरेक्ट इसको 125 से कर रहा हूँ. तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 और 12 बचा मेरे पास, क्या बचा अगेन 5, 25 12 में जा रहा है. ठीक है, सो वी कैन राइट हाउ कैन राइट 5 की पावर 5 into 5 into 5 into 5. So this is this. So we can say we are able to write it in the form of 2 की power 0 and 5 की power 5.
So since for any rational number p and q with q of the form where nm is positive number, positive integers, it terminates तो टर्मिनेट हो जाएगा. therefore terminates. बस खत्म. Please see.